So hey guys, welcome to day 234. You know, Friday day 234, and it's basically 26th of June. It will be posted spera as a later, but then yeah, moment. One, two, three, chuck. Also, lass uns sehen, lass uns schauen, wie was wir haben heute gelernt. Okay, so starting in the morning sessions, we when we started, we just did with passive sentences. As you already know, we studied about some passive sentences, how we need to formulate the sentences in passive form. Okay, so guys, a lot of time when I talk, so yeah, so let's just jump into the topic that we're gonna study today. So we did with the passive sentences. First of all, that we have already covered in the previous vlogs, and then we saw through books as well what we need to study, and then we did some exercises in the book. And ja, und dann zum Beispiel langes Haar soll zusammenbinden oder hochgestecken werden. Also ja, mit passive sentences we interchange. There were different questions, and we need to arrange them accordingly and change them into passive form. Okay, so that was it. And then we had basically, we didn't have much to cover in the last day. We already had covered a lot in the SWI days, Wednesday and Thursday. So Friday we didn't have a lot, so we were just, we don't have much. I just, whatever we learned, I'll just tell you about it. You can just search it through. So I've got certain vocabs that you need to learn. I would just say you can actually pause and hear it again, and but you actually need to learn those vocab. That's really important. Übertragen, das bedeutet weitergeben. Erreger bedeutet pathogens, cause, oder? Pathogens, Keime. Niesen is chink, cheek mana, sneezing, niesen. Und schmieren. Schmieren is wie grease होता है ना, जैसे grease, वैसे schmieren करके बोला, lubricant हो गया, slush हो गया. Gelangen, gelangen is to arrive, to get, to reach. Stitch is sting or stab. Geschlecht is basically welche Geschlecht sind Sie, है ना? Ich bin ein Mann, है ना? मैं एक मेल हूँ, मैं एक फीमेल हूँ. तो जेंडर बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं, तो उसको गेस्लेस्ट भी बोलते हैं, है ना? स्लाइम क्या होता है? स्लाइम सेम एज इंग्लिश वर्ड. ओके, जैसे म्यूकस होता है, फ्लेगम होता है ना? स्लाइम होता है, वैसे सेम चीज़ ही है. बेस क्या होता है? बेस होता है बाइट या फिर बिट. टॉलवुड होता है रेबीज. जैकन होता है टिक्स. म्यूकन होता है मिजेस, मिजेस. स्टॉप वैक्सल होता है मेटाबॉलिक. फेहिश मतलब होता है कैपेबिलिटी या कैपल, कॉम्पिटेंट. फर्मेरन इज टू ब्रीड, टू इंक्रीज, टू स्ट्रेंथन. Nachgewissen, dringen, to get through, unendlich, verursachen, wahr sehen, Lippen, Bläschen, verlaufende, Auslöser, heftiger, Endstate, einzellig, Stecknadelkopf, Wirtszelle, zerstören, schädigen, Giftstoffe, krank machen, Verfügung, anhaben, Massen, Tierhaltung, einwaschen. Also we have a lot of vocabs. As much as you study, you will find out that actually you have a lot of vocabs that you need to learn. So I just, there were passages we had to read those passages, and then we had to fill those we had to do those übungen, and then we were having discussion period. So this all vocabs was from all those passage. And then what we did was
because when you're learning hygiene, when the topic is hygiene, then you need to also focus on whatever it is. Zum Beispiel mm, Erreger. Also Erreger bedeutet Virus, Viren oder Keime, है ना? So basically one word and different synonyms you should know in German, because that's really important. Okay, so we did that, and then in the Nachmittag we did about multi-resistant. Gestern wir haben über Norovirus gestudiert und heute wir haben über multiresistent, है ना, MRSA, है ना, methicillin resistant Staphylococcus aureus, resistant Staphylococcus aureus, है ना. सो ट्राई या फियर क्या तो एम आर गे एन पर होता है ये 10 बिटारेड की क्या तो ये 3 या 4 एंटीबायोटिक जो ग्रुप है ना उनके अगेंस्ट में ये रेसिस्टेंट है. ये मतलब ये रेसिस्टेंट मतलब बिटारेड की मतलब भाई जब मुझे कुछ मिल रहा है तो वो शरीर मेरा ऑलरेडी यूज टू हो चुका है, वो उसका जो व्यक्त है व्यक्तम काइट है ना, वो क्या बोलते काम नहीं कर रहा है उसके बॉडी में इंसान के. मल्टी रेसिस्टेंट आपको पता ही है, जो भी मेडिकल वाले हैं उनको पता ही है ना, तो वो एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है. बस मेन चीज़ है कि दैट वी नीड टू लर्न दोस एवरीथिंग इन जर्मन एंड प्लस फोकस ऑन वोकैब्स एज वेल. रिजिको फैक्टर्स क्या होते हैं ना, अब्स्ट्रक्ट डियोलिस, हाँ और ये किस किस में क्या बोलते हैं रिजिको फैक्टर्स, मतलब क्या क्या कहाँ पर ऐसे ऑप्शन थे जहाँ पर लोग को जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है. जैसे मल्टी मॉर्बिटेट है ना, इंस्बिजोंडर्स क्रोनिशे क्रांकुंगन है ना, सीरियस पेशेंट है, सीरियस डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, उन पर बहुत ईजी होता है ना. स्किप. एंड देन इमोबिलिटेड पेशेंट होते हैं. इमोबिलिटेड मतलब जो ज़्यादातर हिल नहीं रहे हैं वो वाले पेशेंट हो गए. होएस या फिर जे यूंगे अल्टर है ना, ज़्यादा एल्डर पेशेंट है, हो मतलब होएस मतलब बिल्कुल एल्डर पेशेंट हो गए या फिर बिल्कुल बच्चे हो गए, है ना. जेर यूंगे अल्टर मतलब एज बहुत कम है उसकी. क्रोनिशे हाउट लेसियोनिन, जिससे डायबिटिस अल्सर होता है ना, ऐसे होता है कि उसमें क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बाहर से, है ना. स्किन फट रखा है तो बाहर का क्या होता है कांटेक्ट अंदर से आराम से हो सकता है, मतलब ये एक रास्ता बन चुका होता है जर्म्स के लिए अंदर चल के अंदर जाने के लिए, तो इनमें ज़्यादा रिस्क होता है ना. इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं पेशेंट जो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, हाँ मतलब हीलिंग पावर वगैरह, है ना. कॉन्टैक्ट जो मेंशन मिट मल्टी रेसिस्टेंट एरेगन, तो जो भी मल्टी रेसिस्टेंट क्या तो जर्म्स है, कायमे है या फिर विरुन है, उनके कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो उससे भी होता है. हॉफिगे क्रांकन हाउस ऑफ एंड हाल्ट, हाँ मतलब जो इसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं नोजोकोमिकल नोजोकोमियल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या तो हॉस्पिटल में रह के होता है, तो वो क्या बोलते हैं इनके कांटेक्ट में आने से भी क्या बोलते हैं हो सकता है. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा, है ना. फिर बाइशपील में वेल्शे मासनामा एरग्रीफ्ट देयर फ्लेगफाकमन, है ना, कि ऐसा कौन कौन से मासनामा है जो क्या तो जब ऐसा कुछ होता है तो फ्लेगफाक क्राफ्ट जो है, फ्लेगफाक मन है जो है, जिसे हम इंडिया में क्रांकन क्या तो सिस्टर्नर्स बोलते हैं, क्रांकन श्वेस्टा या फिर क्रांकन फ्लेगा, तो यहाँ पर क्रांकन फ्लेगा नहीं बोलते, यहाँ पर फ्लेगफाक बोलते हैं. फ्लेगफाक मन, फ्लेगफाक फ्राउ बोलते हैं ना. तो अब ऐसा था कि क्या तो फिर हमें एक बाइशपील देता है, फोर शपील के लिए दिया था कि अगर तुम्हारे पास एक पेशेंट है जिसको ऐसा कुछ क्या बोलते मल्टी रेसिस्टेंट वाला कोई डिजीज़ हो गया है ना, MRSA हो गया है या फिर क्या बोलते नीरोवीरस आ गया है, तुम उस पेशेंट को कैसे बात करोगे, है ना. तो अलग से तरीके से बात करना है, उनको बताना है, फिर क्या बोलते दरवाजे के सामने पूरा सिस्टम लगाना है सारा सामान कि भाई जो भी अंदर जाएगा आइसोलेट करना है पेशेंट को, है ना. जो भी अंदर जाएगा तो उसके पास ग्लव्स वगैरह सब जो होने चाहिए तो बाहर रखते हैं, शील्ड टांग कर देते हैं, उसे अनगियोहरिगन को इन्फॉर्म करते हैं, वी नीड टू ऑल्सो इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स, है ना. तो सारे चीज़ है ये कैसे कैसे पेशेंट से बात करना है जब अगर ऐसा कुछ होता है, तो ताकि उसे बुरा ना लगे. ऑब्वियसली यार कोई शॉक में चल जाएगा कि यार कि मुझे आइसोलेशन में रहना है. We also talked about what the patient goes through when the patient is for long duration isolated, है ना. एक कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत टाइम से आइसोलेट कर रखा है उसको, तो भाई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई लोग से मिल नहीं पा रहा, वो अपने रिलेटिव से नहीं मिल पा रहा, किसी से देख नहीं पा रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके रीजन, है ना. तो ऐसे में दिक्कत होते हैं.
ह्यूगिनमासनामा क्या-क्या होते हैं जो हम ऐसे सिचुएशंस पर हमें देखने पड़ते हैं, वो सब हमने पढ़ा है ना? और आज ये ह्यूगिनमासनाmen, das wir müssen है ना, Beobachten. Was ist anders? Alzheimer's, MRSA, Patientengespräch sind the sterilization. हाँ, then we also did this topic, sterilization. ओटी में जितने स्टाफ काम करते हैं, इंटेंसिव सेक्शन में काम करते हैं, आपको पता है ना कि क्या तो आईसीयू और ओटी में काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत यूज़ करते हैं, फिर उनको स्टेराइल करने के लिए भेजा है ना, उनको स्टेराइल करने के लिए ओटी या फिर कहीं पर ऑटोक्लेव वाले जगह पर भेजना पड़ता है ताकि वो पूरे स्टेराइल हो जाए, है ना? तो स्टेराइल के बारे में पढ़ा था हमने, और फिर क्या बोलते हैं उसका पूरा वीडियोज़ वगैरह हमने चेक करे थे, देखे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थे। तो दीज़ वर द थिंग्स दैट वी कवर्ड इन द लास्ट डे, दैट वाज़ दैट्स फ्राइडे। So, I've told you Lagerung vom Sterilgerät, Umgang mit Sterilgut, OT Ausbildung, इसका भी OT का भी Ausbildung अलग से होता है। तो a lot of people they ask me कि can you work in OT from in, like we are in India and can we get a job in to work in the OT? You can, and there's this OT Ausbildung, you can do your training, that's for 2 years and then ये जॉब करते साथ साथ भी आप ये कर सकते हो ना, तो अच्छी चीज़ है, पेमेंट भी मिलता रहेगा, साथ में पढ़ाई भी तुम्हारा होता रहेगा, एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। तो ठीक है, आई होप I basically didn't explain a lot of things, but actually I've told you what the syllabus is, है ना? मैंने, because if I keep on reading everything, the video will be so long. So let's begin. I've tried to just focus on important topics, and then you can just search it through and download it and just read it like during your self studies. Okay, so this was it. I'll see during the weekend if I have time, then I'll just talk about a certain topic or so. Okay. So Saturday, Sunday, I won't be making much vlogs. If I go somewhere, then I'll record. Und sonst Monday and Tuesday I've got Fruitings, and then Wednesday again with the classes. So we'll see later. Okay. Also dann, bis später. Ciao.